تو اگر آپ اپنی اسلامک ویلیوز کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دینا چاہتے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل دینا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت آئیڈیل ملک ہے۔ وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہاں کی جو سیلری پیکیجز ہیں، سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک باکس کو ٹک۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ولاگ بنانا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ مجھے میسیجز کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم UK یورپ نہیں موو کریں تو ہم کہاں موو کریں؟ ہم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن، پاکستان میں جو جنرلی ایک اس وقت پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، سب کے ساتھ مل کے جو پاکستان کا ایٹماسفیئر ہو گیا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ میرے لیے یہ کہنا بہت تکلیف دہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کا نام پہ لیا گیا تھا، وہاں پر مسلمانوں کا ہی رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ، ہم وہاں پہ رہنے لوگوں کے لیے ایک زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا ہے، لیکن لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں آج آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے آئی ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان سے نکلنا ہی ہے، جو کہ میجورٹی لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آخر دنیا کا وہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر لوگوں کو مائگریٹ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جہاں پر ان کو جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے بارے میں سوچے اور اس کے لیے ایفرٹس بنائے۔ تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان میں ہی رہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو شاید میں خود بھی نہیں کروں۔ مجھے اگر واپس جانا ہو تو شاید میں پاکستان واپس نہیں جاؤں، بلکہ میں کسی دوسری کنٹری کا انتخاب کروں، اگر مجھے یہ آپشن ملے، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ UK کی زندگی میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں ایک مسلمان کے طور پہ یہاں پہ رہنے کے لیے۔ تو اگر آپ اپنی اسلامک ویلیوز کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دینا چاہتے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جس کنٹری کا میں انتخاب کر رہی ہوں آج آپ کو بتانے کے لیے، وہ ہے قطر۔ قطر ایک بہت چھوٹی سی کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں، سعودیہ کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، باقی 3 طرف اس کے پانی ہے، عربین گلف ہے، پاکستان سے اتنا دور نہیں ہے ڈسٹنس کے حساب سے، لیکن ڈیولپمنٹ کے حساب سے پاکستان سے شاید اگلے 100 سال بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں پر قطر پچھلے 15-20 سال میں پہنچا ہے۔ بہت تیزی سے یہ کنٹری ڈیولپ ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جو قطر ہے، یہاں پر آپ کو دبئی کی طرح کا ایڈوانس لائف سٹائل ملے گا، وہ سب فیسلٹیز ملیں گی، لیکن جو یہاں کا ایٹماسفیئر، جو یہاں کا کلچر ہے، وہ اسلامک کے لیے بہت اچھا ہے رہنے کے لیے۔ قطر کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے زندگی کے حساب سے، وہاں گزارنے کے حساب سے، اگر مجھے بھی کسی کنٹری میں آئیڈیلی موو کرنا پڑے تو شاید میں اپنے لیے بھی قطر کا ہی انتخاب کروں گی۔ میں پہلے خود قطر میں رہ بھی چکی ہوں، تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہاں کا لائف سٹائل، وہاں کی زندگی، وہاں کا جو فیوچر ابھی نظر آ رہا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا ہے، اس کے حساب سے یہ بہت ایک آئیڈیل کنٹری ہے موو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو قطر کو UK سے یا یورپ سے یا کسی بھی کنٹری سے بہتر بناتا ہے، وہ ہے قطر کا ٹیکس فری ہونا۔ قطر میں ٹیکس نہیں ہے، تو جو بھی آپ ارننگ کر رہے ہیں ساری کی ساری آپ کی اپنی پاکٹ میں جاتی ہے۔ مہنگائی قطر میں بھی اتنی ہی ہے جتنی یہاں ان ملکوں میں ہے، لیکن سیلری یہاں سے بہت بہتر، بہت اچھی ہے۔ وہی جاب جس کے لیے جو میرے جیسے ویورز UK میں رہ رہے ہیں اور وہ موو کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، UK میں اگر جس جاب کی آپ کو سیلری 2-2.5 ہزار پاؤنڈ مل رہی ہے ٹیکس کاٹنے کے بعد، قطر میں آپ کو اسی جاب کی سیلری UK کے حساب سے تقریباً 4.5 سے 5 ہزار پاؤنڈ ملے گی، اور اس پہ ٹیکس بھی نہیں کٹے گا۔ یہ ساری کی ساری سیلری آپ کی اپنی پاکٹ میں آئے گی۔ تو جو قطر کا ٹیکس فری ہونا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو پاکٹ میں آپ ارننگ کر رہے ہیں، آپ کی جو محنت کا اینڈ میں پھل ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اب قطر ٹیکس فری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطر میں کوئی فیسلٹیز کم ہے۔ ایکچولی اگر قطر میں دیکھیں تو قطر میں فیسلٹیز UK سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ قطر میں جو فیسلٹیز ہیں اس کو آپ UK سے کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ قطر کا جو میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں بہت زیادہ بہتر ہیں UK سے۔ وہاں پر میجورٹی جو جابز ہیں، بلکہ وہاں پر جو جابز ہیں وہ آپ کی فیملی کا انشورنس ہر جاب میں ہی تقریباً انکلوڈڈ ہوتی ہے۔ ایون اگر کوئی لیبر جاب میں بھی جا رہا ہے تو اس بندے کی اپنا میڈیکل جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے، اس کی جاب کے ساتھ آپ کو وہاں پہ انشورنس ملتی ہے۔ تو میڈیکل آپ کو اگین آپ کا انشورنس کے ساتھ ہے تو آپ کا میڈیکل فری ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل آپ کا فری بھی ہے، اینڈ دین آپ کی میڈیکل کی فیسلٹی UK سے آئی وڈ سے کہ ایٹ لیسٹ نہیں تو 20 ٹائمز بیٹر ہے۔ ویٹنگ ٹائمز اس طرح سے نہیں ہے ادھر کسی بھی چیز کے لیے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ ہاسپٹل میں ایڈمیشن آپ کا کسی چیز کے لیے ہونا پڑ رہا ہے،
जितने साफ़-सुथरा वहाँ का एटमॉस्फेयर है या वहाँ पे इक्विपमेंट उनके पास कितना लेटेस्ट अवेलेबल है। ये सब चीज़ें जो बंदा एक वहाँ रहता है, वही आपको बता सकता है कि वहाँ का मेडिकल केयर सिस्टम कितना अच्छा है, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ का जो इवन वहाँ का हमद हॉस्पिटल गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। शायद यूके के एनएचएस का कोई भी हॉस्पिटल उसके करीब भी नहीं जाता उसमें। तो इसी तरह वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम सब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो बात मैं लेके चलूँगी वो है वहाँ की सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो वहाँ की सैलरी यूके से बहुत बेहतर है, यूरोप से बहुत बेहतर है वहाँ की सैलरी जो वहाँ पे दी जाती है। फिर वो सैलरी टैक्स फ्री है, तो आपके पॉकेट में ही सब कुछ आ रहा है, कुछ आपको टैक्स में नहीं जा रहा। थर्ड जो वहाँ की पैकेजेस में मेजॉरिटी आपका हेल्थ केयर इंक्लूडेड होता है, जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है, वैसे ही वहाँ पे भी आपकी फ्री आता है। यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन कतर में आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी आपकी जो है वो इंश्योरेंस के ही थ्रू आप को मिलती है। नेक्स्ट जो कतर की एक बहुत अच्छी चीज़ है, कतर बहुत मल्टीकल्चरल है। वहाँ पर जो इस वक़्त जो कतर की पॉपुलेशन है, सिर्फ़ 20% ऑफ़ द पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल लोकल कतरी हैं। बाकी 80% जो पॉपुलेशन है, वो एक्सपर्ट्स की पॉपुलेशन है। एक्सपर्ट्स की पॉपुलेशन है, इसकी वज़ह से वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। हर कोई जो है वहाँ पे बाहर से ही आया हुआ है, किसी की भी वहाँ पे फैमिली नहीं है। सब लोग जो हैं सभी लोग जो हैं वो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि तो इसलिए वो सब एक्सपर्ट्स वो एक पूरी बड़ी आप कह लें एक फैमिली एटमॉस्फेयर ही आपको वहाँ पे मिल जाता है। हर कोई हर किसी से बहुत मुखलिसाना तरीके में मिलते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स बनाना इस हिसाब से बहुत आसान है। इसलिए सेटल होना वहाँ पे उनके बीच में इंटीग्रेट होना लोगों के बीच में बहुत आसान है। बहुत वेलकमिंग लोग हैं और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि वहाँ के अगर मैं लोकल्स की भी बात करूँ सर कि बहुत ही हॉस्पिटेबल सी कंट्री है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वाली कंट्री है। क्योंकि कतर ए में 80% जो है वो एक्सपर्ट्स रहते हैं। उसके बाद कतर की जो लोकल्स हैं वो बहुत पढ़ी-लिखी कौम है। उस हिसाब से कतर में इंग्लिश इतनी आम बोली जाती है बल्कि कतर में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर अगर आप शॉप पे जाते हैं कोई अपनी ग्रोसरी लेने तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे इन्हीं नेशनैलिटी के कोई लोग मिलेंगे तो उर्दू भी बहुत ज़्यादा चलती है कॉमन। वहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर कोई समझता है। यहाँ से यूरोप की साइड से लोग आए हों, अमेरिका की साइड से हों, पाकिस्तान, इंडिया से हों, सब इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश ही चलती है। मैं खुद कतर इतना अरसा रह के आई हूँ और हमें कभी भी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि हमें अगर अरबिक नहीं आती, तो हमें उसका कोई डिसएडवांटेज है। यहाँ पे कहीं पे हमें अपनी बात सब जा नहीं सकते। इवन गवर्नमेंट की ऑफ़िसेज़ में आपको डील करना है, तो उसके लिए भी इंग्लिश ही वहाँ पे चलती है। तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। इंग्लिश, उर्दू दोनों से आपका काम बिल्कुल सही पे वहाँ पे आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, आपका काम सही चल सकता है। नेक्स्ट कतर की जो एजुकेशन सिस्टम है, कतर में जितने अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। कतर में आपको ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा, कतर में आपको अमेरिकन मिल जाएगा, आईबी सिस्टम के आपको स्कूल मिल जाएँगे। कतर में आपको पाकिस्तानी एम्बेसी का भी स्कूल है, आपको वो भी मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा स्कूल है। इसी तरह कतर में इंडियन एम्बेसी का अपना स्कूल है, उसके अलावा भी और भी इंडियन स्कूल्स हैं। तो इस तरह से कतर में जनरली और जितने भी स्कूल्स हैं बहुत ज़्यादा इनके क्योंकि चेक है इनकी और सारे फ़ी पेइंग स्कूल्स हैं क्योंकि तो इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहाँ पर फ्री एजुकेशन का सिस्टम नहीं है लेकिन वहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपका एम्प्लॉयर या आपको रीइंबर्स करता है या आपके 1 या 2 बच्चों की एजुकेशन जो है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड होती है। अगर नहीं भी इंक्लूडेड हो इवन देन कतर का एजुकेशन सिस्टम यूके से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी अपनी बेटी कतर में स्कूल में पढ़ती थी और उसके हिसाब से मुझे पता है जो कतर में वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी, कहने को वो ब्रिटिश करिकुलम फ़ॉलो कर रहे थे लेकिन वहाँ पर जो पढ़ा रहे थे, जो पढ़ाने के टीचिंग स्टाइल है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पर रहने वाले पेरेंट्स के लिए आरएससी का या पीएसएचई के सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से कतर में ये सब्जेक्ट्स को उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, तो इस्लामिकली भी आपका ठीक रहता है। तो कतर की एजुकेशन सिस्टम आई वुड से इट्स लिटरली वर्ल्ड क्लास। कतर की जो कतर फाउंडेशन है उसमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की अपने कॉलेजेस बने हुए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। तो आपको ऐसे नहीं है जैसे सऊदीया में बहुत से लोग मूव होते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को फिर यूनिवर्सिटी के टाइम पे पाकिस्तान भेजते हैं वापस पढ़ने के लिए। कतर में आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है दुनिया के लिहाज से, उनकी डिग्रीज रिकग्नाइज्ड भी हैं। तो बहुत अच्छी एजुकेशन का सिस्टम अवेलेबल है।
उसके अलावा सबसे बड़ी जो मुझे कतर की बहुत अच्छी बात लगती है, वो है कतर बहुत ज़्यादा सेफ़ है। कतर में एक अकेली लड़की, औरत, बच्ची आराम से बाहर निकल सकती है। आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको किसी किस्म की कोई डर नहीं होगा कि आप पे कोई अटैक करेगा, आपको किसी किस्म का किसी चीज़ के चोरी होने का डर नहीं है। अगर आपका रात को दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ, खुला रह गया है, तो आपको ये नहीं होगा कि अब रात में कोई जो है आपके घर में डाकू घुस आएँगे। तो कतर सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर वो सेफ्टी आपके अपने बाहर जाने की, घूमने-फिरने की, काम करने बाहर निकलने की है, फिर वो सेफ्टी आपकी चीज़ों की है। हर लिहाज से कतर बहुत सेफ़ कंट्री है, और मैं खुद वहाँ पे रह के ये एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ कि कतर बहुत सेफ़ है। रात को रमज़ान में क़यामुल लैल के लिए मैं अक्सर जाती थी, और आराम से मैं अकेली भी चली जाऊँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं वॉक करके उस टाइम पे अकेले अपनी लोकल मस्जिद जा रही हूँ। पाकिस्तान में या फिर इवन यहाँ पर यूके में भी एक अकेली औरत रात में मग़रिब के बाद भी निकलते हुए आपको देख के, सोच के, अपने इर्द-गिर्द का आपको ख़्याल रख के निकलना पड़ता है। लेकिन कतर में आपको ऐसा वाला कोई नहीं है, आप बहुत सेफ़ वहाँ पे फ़ील करते हैं, और बहुत सेफ़ कंट्री है। इसी हिसाब से, क्योंकि वो सेफ इतनी है, वो फैमिली फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे बाहर निकल सकते हैं पार्क में अकेले खेलने के लिए। यहाँ पर या पाकिस्तान में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को जो है अकेले पार्क में भेजेंगे। पेरेंट्स को बच्चों के साथ होना चाहिए, आपको हर वक़्त बच्चों के पास-पास होना चाहिए। कतर में आपके लोकल पार्क में आपके बच्चे आराम से खेल सकते हैं, क्या तो बहुत फैमिली फ्रेंडली है वहाँ पे। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है उसके हिसाब से बीचेज़ बहुत खूबसूरत हैं। तो एक वहाँ पर मैंने जो बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ की और वहाँ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखी है, वहाँ पर लोग रिलैक्स्ड हैं। और क्योंकि लोग रिलैक्स्ड हैं, वो ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, ज़िंदगी गुज़ार नहीं रहे बल्कि ज़िंदगी जी रहे हैं। ये 2 बहुत, इनमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो शायद हर कोई नहीं समझ सकता। ज़िंदगी गुज़ार तो हर कोई लेता है, दिन गुज़र रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। तो कतर में आपकी एक्चुअली आप देखते हैं, वहाँ पे ऑफ़िस टाइमिंग्स, स्कूल टाइमिंग्स इस हिसाब से हैं कि दोपहर में आप आके रेस्ट करके और शाम में इज़िली बाहर निकल सकते हैं, आप अपना फैमिली टाइम गुज़ार सकते हैं। जो कि शायद मुझे वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ पे आपको फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। जो आप अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुज़ार सकते हैं, आप बच्चों को वक़्त दे सकते हैं। आप एक मैकेनिकल लाइफ़ नहीं वहाँ पर गुज़ार रहे। तो फैमिली फ्रेंडली इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। स्कूलों में बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। उसके बाद घर में बच्चों के आपके पास टाइम है, एज़ पेरेंट्स आप जॉब से टाइमली वापस आ जाते हैं। 7-8 बजे रात के आप टाइम जॉब से वापस नहीं आ रहे कि आप पेरेंट्स बिल्कुल थके हुए हैं, बच्चों को उस टाइम पे बस आप आएँ और बच्चे सोने के लिए चले जाएँ, साथ बैठने का मौका भी नहीं इतना मिले। तो इस हिसाब से फैमिलीज़ के लिए रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर अगेन कोई भी ऐसा नहीं है कि कतर एक डेज़र्ट में बनी हुई कंट्री है, तो वहाँ पे बिल्कुल कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी। आपको बहुत ग्रीनरी भी है, बहुत पार्क्स भी हैं। उसके अलावा डेज़र्ट को भी बहुत एन्जॉय किया जा सकता है, जो कि यूके में या पाकिस्तान में रहने वाले लोग शायद इस बात को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, तो आप इस बात को देखते हैं कि एक्चुअली डेज़र्ट में अल्लाह ने बहुत खूबसूरती रखी है। जिस वक़्त आप जाते हैं डेज़र्ट कैंपिंग के लिए, वहाँ पे बहुत कॉमन है लोगों का जाना, ड्यून बैशिंग के लिए जाना। ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर देखते हैं, आप अल्लाह ताला की कुदरत भी आपको बहुत देखने को मिलती है कि सहरा में अल्लाह ने कितनी खूबसूरती रखी है। ग्रीनरी में भी खूबसूरती है, लेकिन सहरा में भी बहुत खूबसूरती है, तो खूबसूरती के हिसाब से कहीं कोई कमी नहीं है। बीचेज़ बहुत खूबसूरत है, सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत शैलो बीचेज़ हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो बहुत शैलो बीचेज़ हैं, तो बच्चों को लेके आप जब बीच पे जाते हैं तो बहुत ही सेफ़ फ़ील होता है, बच्चे आराम से पानी में भी एन्जॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। वेदर वहाँ का गर्मी के हिसाब से पाकिस्तान की ही तरह की गर्मी है, ये पाकिस्तान से कराची की तरह की कह लें गर्मी है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन विंटर बहुत खूबसूरत है। विंटर का मंथ इतना अच्छा वहाँ से रहता है, बहुत प्लेजेंट होता है। विंटर का ही टाइम ऐसा होता है वहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में भी लोग बारबेक्यू करते हैं, वहाँ पे भी विंटर्स में खूब बारबेक्यूज़ हो रहे होते हैं। बड़ा एक फेस्टिवल का सिस्टम है वहाँ पे। बहुत से शॉपिंग मॉल्स में उस टाइम पे फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, बहुत ही इवेंट एंजॉय करने का टाइम होता है। तो विंटर्स का टाइम स्पेशली बहुत एंजॉयबल हो जाता है कतर में। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो कतर के बारे में है, वो ये है कि वो पाकिस्तान से दूर नहीं है। तो जो लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं, उनका वापस अपनी फैमिली के लिए किसी दुख-सुख में पहुँचना बहुत आसान है वहाँ से। आप इज़िली वहाँ से जा सकते हैं। कराची के लोग जो हैं, उनके लिए तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट बनती है। जो इस्लामाबाद, लाहौर की साइड के लोग हैं, उनके लिए तकरीबन 3 घंटे की वहाँ से फ़्लाइट है। तो बहुत आसानी से आप वापस पाकिस्तान भी जा सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई खुशी का मौका है, तो वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं आप। इस हिसाब से
میرے میرے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے بھی اور میرے اوپینین کے حساب سے بھی قطر رہنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہت آئیڈیل ملک ہے۔ وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہاں کی جو سیلری پیکیجز ہیں، سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک باکس کو ٹک کرتی ہیں۔ مجھے وہاں پہ رہنے میں کبھی کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوئی کہ ہاں قطر کی زندگی میں یہ چیز بہت مشکل ہے اور اس کی وجہ سے قطر میں رہنا نہیں رہنا چاہیے، یا پھر یہاں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ اگر کوئی بھی آپ باہر کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ پاکستان سے موو کرنا چاہتے ہیں، اس کنٹری کو ضرور ایکسپلور کیجئے۔ وہاں پر آپ کے اگر کوئی جاننے والے ہیں، بہت سی قطر میں ہائرنگ جو ہے وہ آپ کی کانٹیکٹس کے بیس پہ بھی ہوتی ہے، تو آپ اس کے تھرو کریں۔ لنکڈ ان کے تھرو آپ، جیسے میں پہلے بھی جابس بتا چکی ہوں کہ آپ نے کیسے جابس ڈھونڈی ہے، میری ایک اور ویڈیوز پہ اویلیبل ہے، لنک میں اس کا اٹیچ بھی کر دوں گی، اس کے تھرو آپ قطر میں جاب ڈھونڈیے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل نومیڈس کے رہنے کے لیے بھی قطر میں بہت سی فیسلٹیز ہیں، تو ضرور اس کنٹری کو ایکسپلور کیجیے اور ٹرائی کیجیے کہ اگر آپ ادھر موو ہو سکتے ہیں تو ضرور موو کیجیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا سا فیوچر سیکیور کیجیے۔ اور آج کے ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی کسی بہت سے انفارمیٹیو ٹاپک پہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ فردر کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔